Hello students, today we will discuss about your new chapter tissue. What is tissue? Tissue are a group of cells that have a similar structure and act together to perform a specific function. Means tissue सेल्स के ग्रुप को कहते हैं जिसकी उत्पत्ति एक समान हो और ये एक विशेष रूप का कार्य करती हो. ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ द टिश्यू. Tissue are divided into two parts. One is a plant tissue and this one is a plant tissue and second is a animal tissue. Okay, so firstly we will discuss about plant tissue. Plant tissue has divided into two parts, meristematic and permanent tissue. So meristematic means these are simple living tissue having thin walled and capable of division and formation of new cells. मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो एक थिन वॉल से बने हुए होते हैं और ये लिविंग टिश्यू होते हैं और डिवीज़न करके ये न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं. नेक्स्ट, परमानेंट टिश्यू. दीज सेल्स आर कंपोज्ड टू विच सेल हैव lost their capability to divide. Means कि इसमें सेल्स डिवाइड नहीं होती हैं, सेल्स डू नॉट डिवाइड और सेल्स नई सेल्स का फॉर्मेशन भी नहीं करती हैं और इनमें कैपेबिलिटी भी नहीं होती है कि ये डिवाइड हो पाएँ. ये जो डिवाइड होने की जो कैपेबिलिटी होती है इसे ये लॉस्ट कर चुकी होती हैं. ओके, now meristematic tissue has divided into three parts: apical tissue, intercalary tissue and lateral tissue. And permanent tissue have divided into two parts. First one is a simple known as a ground tissue because it's present in a root system of plant. Second one is a complex tissue or vascular bundle. Complex vascular bundle is divided into two parts: xylem and phloem. Now simple ground tissue is divided in the three equally part: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. So today we will discuss about the types of the tissue. So first okay, so this is a flow chart of a plant tissue. Okay, now let's see about this process in a plant. This is a root system of the plant area. It's the stem system and leaf system. So in a root system आपका लोअर एंड अपर पार्ट टू पार्ट में डिवाइड है आपका ये रूट सिस्टम. लोअर पार्ट में आउटर पार्ट ऑफ द रूट टीएस ऑफ रूट सिस्टम इज अ ग्राउंड मेरिस्टेमेट. सेकेंड वन इज अ इनर पार्ट इज अ प्रोकैम्बियम एंड द outer to inner part is a vascular cambium and outer to second layer has a potoderm. Okay, same as it is in the center area of the plant root system. Okay, now the TS cutting of the stem. This one is the TS cutting of the stem. Outer layer has a epidermis. Now second layer is a vascular bundle. Vascular bundle जो है ये जाइलम और फ्लोएम एंड कैम्बियम
तीन होते हैं जिनसे मिलके आपके वेस्कुलर बंडल बनते हैं, जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम। बीच में जो आपको ये रिंग दिख रही है ये कैम्बियम की रिंग होती है। आउटर साइड में आपका जाइलम रहता है, जाइलम आपका इनर साइड रहता है और फ्लोएम आपके ये जो अपर वाला येलो पोर्शन है ये आपका फ्लोएम रहता है। तो इसमें जब दो वेस्कुलर बंडल के बीच में जो आपका ये स्पेस होता है वो आपका कहलाएगा इंट्रावेसिकुलर पैरेन्काइमा। ओके, आउटर लेयर से जब इनर की साइड जो दूसरी लेयर है वो होती है वो आपकी कहलाएगी कॉर्टिकल कोलेनकाइमा। ओके, और जो बीच का एरिया होता है वो आपका कहलाता है पित्त। यहाँ पर आपके कोई भी प्लांट के टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये आपका सिंगल एक वेस्कुलर बंडल का पार्ट्स बताए गए हैं। इसमें आउटर पार्ट इज़ अ प्राइमरी फ्लोएम, देन सेकेंड वन बंडल कैप फाइबर, दिस वन येलो, एंड द फंक्शनल फ्लोएम इज अ upper part in a vascular cambium. Okay, now lower part has a xylem portion. So this one is a primary xylem and middle section is a metal xylem and the inner section has a protoxylem. Okay, so ये आपका प्लांट टिश्यू के डिफरेंट पार्ट्स का डिवाइडेशन है. ओके, नाउ the second part is the now we will discuss about animal tissue. This one is a second part of tissue. Okay, ये आपका second part है टिश्यू का. एनिमल टिश्यूज में divided in a connective tissue. This one is a connective tissue, muscular tissue, epithelial tissue, blood tissue, bone tissue, nervous tissue, adipose tissue and cartilage tissue. ये जितने भी आपके टिश्यू हैं ये ह्यूमन बॉडी में आपको इंडिकेट किए गए हैं कि किस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं. पहले हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की. कनेक्टिव टिश्यू है ये आपका हार्ट में प्रेजेंट रहते हैं. ओके, ये जो आपके रहते हैं ये हार्ट में प्रेजेंट है. मसल जो आपका रहता है मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, ये आपके जो मस्कुलर फाइबर्स होते हैं आपकी बॉडी में मसल्स पोर्शन होता है वहाँ पर ये प्रेजेंट रहते हैं. नेक्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू. ये आपकी आउटर लेयर जो स्किन हमारी होती है, स्किन के ऊपर जो लेयर्स आप देखते हैं स्मॉल जब हम स्किन देखते हैं तो डिवाइडेशंस दिखाई देता है हल्की हल्की लाइंस का. इस तरह से डिवाइडेशंस रहते हैं स्किन में. तो ये आपके क्या रहते हैं, ये टिश्यूज़ रहते हैं. और जो टिश्यू होता है वो आपका ग्रुप होता है सेल्स का, मैंने पहले बताया. तो ये पूरा एक क्या कहलाएगा, टिश्यू कहलाएगा. नेक्स्ट ब्लड. ब्लड में RBC WBC जो ब्लड सेल्स होती हैं उसमें आपके टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, वो आपके ब्लड टिश्यू कहलाते हैं. बोन टिश्यू जो कैल्शियम कार्बोनेट बोन में प्रेजेंट होता है तो वहाँ पर जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं वो आपके हैं बोन टिश्यू. और नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू. ठीक है, न्यूरॉन्स हैं आपका जो ब्रेन से पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं न्यूरॉन्स. वहाँ पर जो आपके टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं तो ये आपके नर्वस टिश्यूज़ कह जाते हैं और ये पूरी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं. नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यूज़. ये आपका जो डायफ्राम और स्टमक रीजन आपका आता है ये यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं. नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ अ कार्टिलेज टिश्यू. जो आपका रिप एरिया होता है लंग्स का, वहाँ पर जो आपके टिश्यूज़ प्रेजेंट रहते हैं नोन इज़ अ कार्टिलेज टिश्यू. ओके, सो these are the different types of the animal tissues. Okay, now in the next video we will discuss about the collenchyma, sclerenchyma and parenchyma. Thank you.